Hello students, very good afternoon to all of you. This is your English teacher Mr. Devesh Singh. Dear students, in this video you will get solution for this chapter, Debu and Mika. Now you see the first exercise. Exercise number 8. What did Debu call an ancient instrument? डेबू उस एंशियंट इंस्ट्रूमेंट को क्या कहता था? हॉर्स, पेन, रोबोट, नोटबुक. स्टूडेंट, हियर द करेक्ट appropriate option is a pen. Exercise number B for ball, is a correct option. Now you see exercise number 2. Debu sits like a statue, a smile dawning on his face. Why did Debu smile? Here students, it is said that when Debu was sitting like a statue, there was a smile running over his face. So why he was smiling? Your option is he thought Mika was very intelligent. क्योंकि मिका बहुत इंटेलिजेंट था. He realized he could ask Mika to complete his homework. और उसको ऐसा रियलाइज हो रहा था कि मिका से उसका होमवर्क करने के लिए कह सकता है. थर्ड, ही वांटेड मिका टू प्ले विद हिम एंड हिज फ्रेंड. वो मिका से और उसके फ्रेंडों मिका चाहता था कि मिका उसके और उसके फ्रेंड के साथ खेले. और नंबर डी है, ही वॉज वेरी प्लेज्ड विद मिकाज आंसर. मिका के आंसर से बहुत खुश था. स्टूडेंट्स, हियर करेक्ट ऑप्शन इज बी. ही रियलाइज्ड ही कुड आस्क मिका टू कंप्लीट हिज होमवर्क. Now see number 3. Debu asked Mika what a horse was because. What a horse was. Debu asked Mika what a horse was because he was upset with his homework. Because he wanted to see if Mika knew the answer. And next, because he had never seen a horse before. And next, had to write about a horse. Here students, in these 4 options, option number D, because he had to write about a horse, is correct option. Okay student. Now you see exercise number 4. Debu asked Mika a lot of questions because डेबू ने मिका से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा क्योंकि he wanted to check if his own answers were correct. He wanted to check if his own answers were correct because he wanted to test Mika's knowledge, because he thought Mika could help with his homework, and because he wanted to know the answer. So within these 4 options, option number C is correct because he thought Mika could help with his homework. Okay students, you can tick here option number C. Okay, now you see your next question is exercise number B. Exercise number B, think and discuss with your partner, share your answers in class. The first is what were Debu's complaints about his homework and why do you think he found it so difficult? Now let's see. Its answer is here. Debu got a history assignment which was very difficult to solve. डेबू को हिस्ट्री असाइनमेंट मिला था जिसको सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था. ही वॉज अनेबल टू डू इट विदाउट हेल्प. और बिना किसी के हेल्प के उसे करना डेबू के लिए आसान नहीं था. एक्चुअली ही विश टू गो आउट एंड प्ले इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग हिस्ट्री असाइनमेंट्स. और वास्तव में
वो बाहर जाना चाहता था, खेलना चाहता था। मीन्स हिस्ट्री असाइनमेंट के करने के बजाय वो बाहर जाना चाहता था, खेलना चाहता था। ऑल हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड खेल रहे थे, इसलिए उसका मन भी वहाँ पे पढ़ाई में लग नहीं रहा था। Now, second question is, what is your impression of Dev? What is your impression of Dev? Okay, student. The question number 2. Debu is a 12 years old boy. डेबू जो है एक 12 years old boy है who need help to solve assignment, जिसे असाइनमेंट को करने के लिए हेल्प की ज़रूरत है। He wished to go out and play instead of solving his homework. और वो जो है वो बाहर जाना चाहता है, खेलना चाहता है। होमवर्क करने के बजाय वो बाहर जाकर खेलना घूमना चाहता है। Number 3. Now let's see number 3. The play is called Debu and Mika. जो प्ले है ये प्ले का नाम डेबू और मीका है। डू यू थिंक दिस इज ए गुड टाइटल? क्या आपको जो टाइटल है ये अच्छा लग रहा है, उचित लग रहा है? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर एंड सजेस्ट अनदर टाइटल फॉर द प्ले। नंबर 3. ओके, लेट्स सी. यस, it is a good title as the whole story revolves around them. Yes, it is a good title as the whole story revolves around them. Another title can be Robot, my modern friend. और जो another title है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रोबोट माई मॉडर्न फ्रेंड। ठीक है ना? तो टाइटल तो यहाँ पे सही है, क्योंकि पूरी जो स्टोरी है वो मीका और डेबू के आसपास ही उसी के चारों तरफ घूम रही है, इन्हीं के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है, इसलिए टाइटल सही है। आप चाहो तो दूसरा टाइटल लिख सकते हो, रोबोट माई मॉडर्न फ्रेंड, रोबोट माई मॉडर्न हेल्पर। ओके, नाउ Number 4. Then I am free. I can go and play with my friend. Who said this? Why did he say it? Why did he say it? Number 4. Number 4 is, then I am free. I can go and play with my friend. Who said this and why did he say it? Okay, student. See the answer. Debu said this. Who said this? Debu said this because Mika was ready to do Debu's assignment. डेबू इस चीज़ कहता है क्योंकि मिका डेबू का असाइनमेंट करने के लिए तैयार है। एंड नाउ ही कुड गो आउट एंड प्ले, और वो बाहर जा सकता था, खेल सकता था। इसीलिए जो है वो बाहर जा सकता था, खेल सकता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर सी देखिए, वर्क इन पेयर्स, एक्ट आउट इन क्लास। इमेजिन वन ऑफ यू इज टेबू and the other a friend from school. Talk about how you felt when you saw your homework and what you learned from this. ठीक है, कल्पना कर सकते हैं आप कि आप डेबू हैं और कोई स्कूल से आप किसी और फ्रेंड को ले लीजिए, फिर आप बात करिए कि हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सा योर होमवर्क। जब होमवर्क आपने देखा तो आपने कैसा फेल्ट किया और फिर आपने इस इंसिडेंट से क्या सीखा, ये सारी चीज़ को आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। देखिए, डेबू कहता है, डू यू नो साहिल वी हैव ए रोबोट। डू यू नो साहिल वी हैव ए रोबोट। मीका, डेबू और साहिल के बीच की कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है।
और इनकी कन्वर्सेशन को जो हमें यहाँ पे शो करना है। ऐसे ही आपको क्लास में एक्टिविटी करना है। कोई भी आप कैरेक्टर लिख सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन यू। बस एक कैरेक्टर डेबू आप अपने को एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे कैरेक्टर को कोई भी नाम लिख सकते हैं एंड यू हैव टू act it in your class. Everywhere you can act it. So here is an example for it. Let you see. Do you know Sahil? We have a robot Mika. यहाँ पे डेबू मिक बोलता है साहिल से कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास एक रोबोट है जिसका नाम मीका है। साहिल कहता ओ रियली, मीन्स अरे तुम्हारे पास रोबोट है। और उसके बाद पे शॉक्ड हो जाता है कि अरे इसके पास रोबोट है। इस बात पे वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। और रियली डेबू कहता है यस हाँ, एंड इट कंप्लीटेड माय हिस्ट्री असाइनमेंट। और ये जो है ये मेरा हिस्ट्री का सारा असाइनमेंट भी कंप्लीट करता है, ये मेरा हिस्ट्री का असाइनमेंट भी कंप्लीट करता है, डेबू बोला। साहिल बोलता वाओ, विल यू प्लीज शो मी, क्या तुम उस रोबोट को क्या तुम हमें भी दिखाओगे, क्या तुम हमें भी दिखाओगे। ओके तो डेबू फिर कहता है यस बट इट इज़ डन इन रोबोटिक लैंग्वेज। हाँ वैसे दिखा दे रहा हूँ लेकिन ये तुम यू कैन नॉट रीड इट बिकॉज इट इज़ इन अनदर लैंग्वेज, इट इज़ इन रोबोटिक लैंग्वेज एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड यू। ओके बताता है उसको। तो अब साहिल जो है ये सुन करके कहता है ओ माय गॉड, हा हे भगवान, ये कैसा ये बनाया हुआ है, कैसे स्टाइल करके ये कैसा रोबोटिक लैंग्वेज लिख के लाया। मीन्स ही एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड टू सी दिस एक्टिविटी। सो ही इज डिस्टर्ब हियर एंड Devu is disturbed here and Sahil enjoying to the act of the robot because it was a nice opportunity for him to enjoy there. Okay student, exercise number C. This is exercise number C. Now we have next exercise number D. Exercise number D, we have two questions and after completing these two questions here we have to read the exercise number D. There is a description about compound words, compound sentence, then we have to read it. Okay,